خدا بیٹے خدا روح القدس کے نام میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور خدا کا شکر کرتا ہوں کہ آپ خداوند کی حفاظت میں اور اس کی پناہ میں اور اس کے پروں کے سائے کے تلے محفوظ ہیں۔ ہر دن کی طرح آج بھی ہم خداوند کے کلام میں سے خداوند یسوع مسیح کی سکھائی ہوئی دعا کے بارے میں خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے اور ہم اپنے ایمان کی مضبوطی اور روح کی تازگی حاصل کریں گے۔ اور عزیزو، میں آج پھر آپ کے ساتھ خداوند کے کلام میں سے مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 6 باب اور اس کی 9 آیت سے 15 آیت تک تلاوت کروں گا۔ Dear friends, brothers and sisters in Christ, may God bless you. And once again, we are in His presence and we are going to meditate upon the Lord's Prayer. And I'm going to share with you the Gospel according to Matthew, chapter 6, verse 9 to 15. I will read first in Urdu and then later on in English. پس تم اس طرح دعا کیا کرو: اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ Pray then like this: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father also will forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. This is the word of the Lord. Amen. عزیزو، خداوند کے نام کی تعریف اور اس کے نام کی تمجید ہو، جو ہمیں قوت اور طاقت دیتا ہے کہ ہم ہر روز اس کے کلام میں سے برکت پاتے ہیں، اور ہم خدا پاک روح کے لیے بھی خدا کا شکر کرتے ہیں، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، جو ہمارے ذہنوں کو کھولتا ہے، اور جو ہمیں امپاور کرتا ہے اور ہمیں دانش اور حکمت دیتا ہے، وزڈم دیتا ہے، تاکہ ہم خدا کے کلام کو جان سکیں اور اسے پھر اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے میں آپ کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے جو دعا اپنے شاگردوں کو سکھائی اس کا ذکر کرتا ہوں، اور عزیزوں، میں نے ہر روز آپ کے ساتھ جب اس دعا کو شیئر کیا تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ دعا جو ہے اس کے جو ہے وہ 4 حصے ہیں۔ The Lord Prayer has 4 parts۔ تو پہلا حصہ جو ہے وہ ہے ایڈریس، اور جب ہم ایڈریس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کس طرح سے خدا باپ کو مخاطب کرنا ہے۔ اور عزیزو، پھر اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں کمٹمنٹ ہے، کہ یعنی ہمیں اپنے آپ کو خدا کی بادشاہی کے لیے اور اس کی مرضی کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے وہ کمٹ کر دینا، اس کے تابع جو ہے وہ کر دینا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تھرڈ پارٹ از اے پٹیشن، ہم نے کس طرح سے اپنی جو التجائیں ہیں، جو اپنی مناجاتیں ہیں، کس طرح خداوند کے حضور لے کر آنی ہیں۔ اور پھر ہم سیکھتے ہیں کہ جو آخری حصہ ہے وہ ہے بینیڈکشن، اور the fourth part is a benediction۔
اور میں نے کل آپ کے ساتھ اس حصے کو جو ہے وہ شروع کیا تھا، اور میں نے صرف پہلی بات آپ کے سامنے شیئر کی تھی، اور وہ یہاں جب ہم 13ویں آیت کے دوسرے حصے کو دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں۔ ورس 13 پارٹ بی، فار یور از دا کنگڈم اینڈ دا پاور اینڈ دا گلوری فار ایور آمین۔ تو میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کہ بادشاہی جو ہے، جو کنگڈم جو ہے، وہ ہمارے خدا کی ہے۔ اور عزیزو، ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے جب پرانے عہد نامے کو اور پھر نئے عہد نامے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہی بات جو ہے وہ ملتی ہے یا ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ سارا اختیار، ساری قدرت جو ہے وہ ہمارے خدا کی ہے۔ اور عزیزو، اگر میں پرانے عہد نامے میں سے فرام دا اولڈ ٹیسٹامنٹ چند آیات آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ اور زیادہ بہتر طور پر اس حقیقت کو جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ جان سکیں گے، اور پھر آپ اپنے ایمانوں کو جو ہے وہ مضبوط جو ہے وہ کر سکیں گے۔ اور اگر ہم پہلی سلاطین کی کتاب دا فرسٹ کرونیکل چیپٹر 29 اینڈ ورس 11 کو جب دیکھیں گے تو وہاں ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے اپنے لیے اس طرح سے سیکھ پائیں گے۔ خداوند کے کلام مقدس میں سے ہم اپنے لیے جو ہے دا کرونیکلز جو ہے اس میں سے جو ہے وہ خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ I'm sorry, I said سلاطین but not اس سے تواریخ۔ تو پہلی تواریخ کی کتاب اور اس کے 29ویں باب میں سے جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے یاد پڑھوں گا، اور وہ 29ویں باب کی جو ہے وہ 11ویں آیت ہے جو میں آپ کے ساتھ پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو آئیے خدا کے پاک کلام میں سے اپنے لیے اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ دا فرسٹ کرونیکلز چیپٹر 29 اینڈ ورس 11۔ تو 11ویں آیت میں یہاں خداوند کے کلام میں لکھا، اے خداوند، عظمت اور قدرت اور جلال اور غلبہ اور حشمت تیرے ہی لیے ہیں، کیونکہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے تیرا ہے۔ اے خداوند، بادشاہی تیری ہے اور تو ہی بحیثیت سردار سبوں سے ممتاز ہے۔ عزیزو، اگر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں سے بھی جو ہے وہ انگلش میں بھی آپ کے ساتھ پڑھوں تو میں اس وقت جب آپ کے ساتھ انگلش میں شیئر کروں گا تو I'm going to use ESV Bible۔ Chronicles chapter 29 and verse 11 میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے لگا ہوں، اور جہاں خداوند کے کلام اس طرح سے لکھا ہوا ہے، and we read like this: Your, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty, for all that is in the heavens and in the earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted and as a head above all۔ تو ہم یہاں خدا کے کلام میں سیکھتے ہیں کہ سارا اختیار جو ہے وہ کس کا ہے؟ اسی کا ہے۔ اور پھر اگر ہم پرانے عہد نامے ہی میں سے مقدس یرمیہ نبی کی کتاب کو اپنے لیے دیکھیں، اور یرمیہ نبی کی کتاب کے جب ہم 32ویں باب کو دیکھتے ہیں چیپٹر 32، تو وہاں خداوند کے کلام مقدس میں ہم اپنے لیے اس طرح سے جو ہے وہ سیکھ پائیں گے۔ 32واں باب ہے اور اس کی 27ویں آیت ہے، چیپٹر 32 ورس 27، دا بک آف جرمایہ چیپٹر 32 اینڈ ورس 27۔ تو جہاں ہم خداوند کے کلام مقدس میں اپنے لیے اس طرح سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں، خدا کے کلام میں 27ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھ میں خداوند تمام بشر کا خدا ہوں، کیا میرے لیے کوئی کام دشوار ہے؟ یعنی یہ خدا کہہ رہا ہے، دیکھ میں خداوند تمام بشر کا خدا ہوں، کیا میرے لیے کوئی کام دشوار ہے؟ عزیزو، میں اسی آیت کو دا بک آف جرمایہ چیپٹر 32 اینڈ ورس 27 آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دا بک آف جرمایہ، آئیے میرے ساتھ خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں، اور ہم بک آف جرمایہ چیپٹر 32 اینڈ ورس 27 میں اس طرح سے اپنے لیے جو ہے وہ دیکھیں گے، جہاں خداوند کے
कलाम मुकद्दस में खुदा मुखातिब होता है, and God said, I'm going to read verse 27. Behold, I am the Lord, the God of the flesh. Is anything too hard for me? खुदा कहता है मेरे लिए कुछ भी जो है चीज जो है वो हार्ड नहीं, इसलिए कि खुदा जो है वो सारी कुदरत का मालिक है। अजीजों, फिर जब हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से ज़बूर की किताब में से अपने लिए देखेंगे, तो मैं आपके साथ ज़बूर 91 यानी साम 91 और उसकी पहली 2 आयत जो हैं वो शेयर करना चाहता हूं, जहां हम खुदावंद के कलाम में ये बात सीखते हैं कि सारी पावर, सारी कुदरत और सारा अख्तियार जो है वो किसका है? वो खुदा का है। क्योंकि आज हम खुदावंद के कलाम में सीख रहे हैं कि पावर जो है वो, अख्तियार जो है, कुदरत जो है वो तेरी है। साम 91 वर्स 1 and 2, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। तो कादर मुतलक का मतलब है सारी पावर, सारा अख्तियार जो है उसके पास है। मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। तो आइए मैं आपके साथ ज़बूर की किताब में से इंग्लिश में भी शेयर करता हूं। आई एम गोइंग टू आल्सो रीड इन इंग्लिश साम 91 and verse 1 and 2. Psalm 91 verse 1 and 2, जहां खुदावंद के कलाम मुकद्दस में हम इस तरह से लिखते हैं, we read like this: He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. तो यहाँ पर लिखा है खुदा क्या है? ऑल माइटी, यानी कादर मुतलक खुदा है। और फिर मैं आपके साथ जो है वो पुराने अहदनामे में से द बुक ऑफ डैनियल, यानी डैनियल की जो किताब है, उसमें से मैं आपके साथ जो है दूसरे बाब की 22वीं आयत जो है उसको जो है वो आपके साथ पढ़ना चाहूंगा। तो आइए हम दूसरे बाब की 22वीं आयत जो है उसको अपने लिए देखते हैं। द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 2 वर्स 22, डैनियल किताब के दूसरे बाब की 22वीं आयत। वही गहरी और पोशीदा चीजों को जाहिर करता है और जो कुछ अंधेरे में है उसे जानता है, और नूर उसके साथ है। यानी सारी कुदरत, सारा पावर, हर एक चीज जो है वो उसी की है। एंड आई एम आल्सो गोइंग टू रीड दिस पैसेज, this verse also in English, the book of Daniel's chapter 22 and I'm sorry, chapter 2 and verse 22। खुदावंद के कलाम में से दूसरा बाब और उसकी 22वीं आयत, चैप्टर 2 वर्स 22, जहां खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है, He reveals deep and hidden things. He knows what is in the darkness and the light dwells with him। तो ये हम पुराने अहदनामे से पढ़ रहे थे कि सारी कुदरत और अख्तियार जो है वो खुदा का है। और अगर आप नए अहदनामे में आ जाएं तो नए अहदनामे में से भी मैं बहुत ज्यादा नहीं बल्कि चंद एक आयतें जो हैं वो आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहता हूं। मैं लूका की इंजील में से गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 1 एंड वर्स 37 जो है वो आपके साथ जो है वो पढ़ने जा रहा हूं। और अजीजों, में इसलिए जो है ज्यादा आयत आपके साथ पढ़ रहा हूं क्योंकि ये बाइबल स्टडी है। आई एम नॉट प्रीचिंग बट आई एम टीचिंग। तो यहां हम खुदा के कलाम में जो है वो लूका की इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 37वीं आयत जो है उसको अपने लिए जो है वो देखेंगे। और यहाँ 37वीं आयत में खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हम जानते हैं, क्योंकि सारा अख्तियार और सारी कुदरत जो है वो उसी की है। यानी लूका की अंजील, Gospel according to Luke chapter 1 verse 37, I'm going to read in English also. For with God nothing will be impossible। तो हम यहाँ खुदा के कलाम में उससे कोई बात भी जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है। और द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 एंड वर्स 8, खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से जो है हम इस बात को भी जो है वो अपने लिए सीखने जा रहे हैं। और 8वीं आयत में जब हम अपनी सीध में लिखा है, खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतल्लिक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 एंड वर्स 8, आई एम द अल्फा एंड ओमेगा,
says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. यानी वो क्या है? कादरे मुतलक है। अजीजो, हम खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं आज आपने लिए कि कुदरत जो है वो सारी किसकी है? खुदा की है। अजीजो, हम यहाँ खुदावन के कलाम में जब इसे सीखते हैं तो हम सीखते हैं ही इज ऑल पावरफुल, सारा अख्तियार, सारी कुदरत जो है उसकी है और उसकी पावर जो है वो अनलिमिटेड है। इंसानों के पास जो ताकत या कुव्वत है वो तो एक लिमिट के अंदर होती है, लेकिन खुदा जो है वो अनलिमिटेड खुदा है। खुदा की कोई हद नहीं है, इसीलिए उसकी पावर की भी कोई हद जो है वो नहीं। और उसे कहते हैं ओमनीपोटेंट, यानी खुदा क्या है? ओमनीपोटेंट, जिसका मतलब है कि खुदा कादिर मुतलक है। वी फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन आवर डेली लाइफ। हम अपनी जिंदगी में हर रोज बहुत सारी मुश्किलात में से जो है वो गुजरते हैं, बट गॉड्स पावर, गॉड एम्पावर अस टू गो थ्रू दोज डिफिकल्टी एंड दोज सफरिंग्स। तो खुदा हमें एम्पावर कर देता है, क्योंकि सारी कुदरत का मंबा वो है, वो हमें एम्पावर कर देता है कि हम उन मुसीबतों में से, उन दुखों में से, उन परेशानियों में से जिनको हर रोज हम फेस करते हैं, हम सलामती के साथ निकल जाएं। और ये बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह जो है चांद जो है सूरज से रोशनी हासिल करता है। रोशनी का जो माखिस है, रोशनी का जो मंबा है वो सूरज है, और चांद उससे रोशनी हासिल करता है। और हम जो इंसान हैं, जो ताकत और कुदरत का मंबा है, माखिस है, वो खुदा बाप है। हम उससे कुव्वत हासिल करते हैं और वो अपनी ताकत से हमें जो है एम्पावर कर देता है। बिकॉज वी अलोन आर नॉट एबल टू फेस एंड स्टैंड फर्म। हम अकेले तन्हा जो है उनमें से जो है वो जो है सुरखरू नहीं हो सकते हैं। हम सलामती से उन मुसीबतों और परेशानियों में से, दुखों में से नहीं गुजर सकते हैं जब हमारा खुदा हमारे साथ ना हो, जब हमारा आसमानी बाप हमारे साथ ना हो। हम जो है लिखा है कि ना ही तो हम सलामती से गुजर सकते हैं और ना ही हम स्टैंड फर्म, यानी हम साबित कदम रह सकते हैं अगेंस्ट द प्रॉब्लम, जो मुश्किलात और परेशानियां हम हर रोज सहते हैं। और हम यहां पर सीखते हैं कि डेली प्रोविजन, जब हम इस दुआ को पढ़ते हैं ना, तो यहां लिखा है ना खुदा के कलाम में कि पास तुम इस तरह दुआ किया करो, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी जमीन पर पूरी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटियां मेरे प्रोविजन की बात की गई है, यानी तमाम उन चीजों के लिए जो हमारी जिंदगी के लिए दरकार हैं। और फिर हम सीखते हैं फॉरगिवनेस, यानी गुनाहों की मुआफी का जिक्र किया, तो हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। और फिर हम सीखते हैं टेम्पटेशन की बात है कि हमें आजमाइश में ना पड़ने दे। इन सारी चीजों में कौन हमारी मदद कर सकता है, ताकत दे सकता है? जो ताकत का मंबा है और जो ताकत का माखिज है, और वो खुदा है। एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट वी आर स्पिरिचुअली इम्पोर्टेंट। या हम क्या है? हम स्पिरिचुअली, यानी जहां जिस्मानी चीजों की जरूरत है वहां रूहानी चीजों की भी जरूरत है। जब तक खुदा हमें रूहानी तौर पर इंपावर नहीं ना करता, खुदा हमें अपनी ताकत नहीं देता, खुदा अपना पाक रूह हमें नहीं देता, ना हम दुआ कर सकते हैं, ना हम खुदा के कलाम को पढ़ सकते हैं, ना हम खुदा के कलाम को सीख सकते हैं, ना हम खुदा के कलाम को सिखा सकते हैं, और ना हम खुदा के कलाम के वसीले से बरकत पा सकते हैं। वी नीड द पावर ऑफ गॉड एंड द होली स्पिरिट इज ए पावर ऑफ गॉड। और अजीजों, हम यहाँ ये बात जो है आज आप सीखते हैं कि हमें इसको अंडरस्टैंड करना होगा। और हम यहाँ पर सीखते हैं कि जब हम लफ्ज इंपोर्टेंट इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है लैकिंग ऑफ पावर और एबिलिटी। यानी हम जो है, हमें क्या लैकिंग ऑफ जो है पावर और एबिलिटी, हमें ये एबिलिटी जो है वो नहीं है। हम अकेले तन्हा इंसानी तौर पर हमारे अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि हम जो है एम्पावर होकर ये सब कुछ कर सकें। खुदा हमें जो है वो एम्पावर करता है। इसीलिए यहां पर लिखा है कि हम इम्पोर्टेंट हैं, और वो क्या है? वो ओमनीपोटेंट है। और हम यहां पर सीखते हैं वी आर विदाउट होप, हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है। हमारे पास उस वक्त जिंदा उम्मीद होती है जब खुदा हमारे साथ होता है, जब खुदा हमारी जिंदगी में, जब खुदा का बेटा यीशु जो है वो हमारी जिंदगी पर राज करता है और खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगियों में होता है। उस वक्त हमारे पास जो है वो होप होती है। बट ही इज विदाउट लिमिट, वो लिमिट के बाहर है। और अजीजों, हम आगे चलकर ये भी सीखते हैं कि वी आर वीक, हम कमजोर हैं, एंड ही इज स्ट्रांग। हम कमजोर हैं, वो स्ट्रांग है।
अजीजों, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। अगर वो हमें ताकत ना दे, कुव्वत ना दे, हम इब्लीस के मुकाबले में कायम नहीं रह सकते हैं। हम उसी वक्त जो है इब्लीस पर धाड़ते हैं जब खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में होता है। और उसके बगैर अगर हम धाड़ेंगे तो खुदा के कलाम में लिखा है कि हमारा दुश्मन इब्लीस शेर बब्बर की तरफ धाड़ता है कि वो किस किस को फाड़ खाए, फिर हम उसके मुकाबले में खड़े नहीं रह सकते हैं। अजीजों, हम यहां पर सीखते हैं कि वी एक्सपीरियंस गॉड्स इटर्नल पावर एवरी डे। हमेशा कायम रहने वाली उसकी जो पावर है उसका तजर्बा हम हर रोज करते हैं। वो तजर्बा किसको होता है? जिसने अपनी जिंदगी उसे दी, जो उसके साथ रहता है, जो उसके पीछे चलता है, जो उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा होने देता है, और जो उसकी बादशाही के तसल्लत में जो है वो रहता है। अजीजों, अगर हम नए अहदनामे में से मुकद्दस पालूस रसूल का खत जो उसने फिलिप्पी की कलीसिया को लिखा है, उसमें से मैं आपके साथ जो है वो पढ़ूंगा, जहां हम खुदा के कलाम में अपने लिए इस तरह से जो है वो सीख पाएंगे अपने ईमान की मजबूती और रूह की ताजगी के लिए। मैं फिलिपियों के खत में से 4 बाब और उसकी 13वीं और 19वीं आयत, 2 आयतें आपके साथ पढ़ूंगा। 13वीं आयत में खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा है, मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मुकद्दस पौलुस रसूल कह सकता है, क्योंकि मैंने कहा कि जब तक वो हमें ताकत न दे, रसूल इस बात की तस्दीक कर रहा है, जो मुझे ताकत बख्शता है। कौन ताकत बख्शता है? उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और यहां इंग्लिश में लिखा है, आई कैन डू ऑल थिंग्स इन हिम हु स्ट्रेंथन्स मी, जो मुझे ताकत देता है, खुदा बाप। अजीजों, हम खुदा के कलाम में सीखते हैं कि जब हम मसीह के वसीले से खुदा बाप के पास आते हैं तो खुदा हमें ताकतवर जो है वो बना देता है। और फिर अगर मैं इसी चैप्टर में से 19वीं आयत जो है उसको आपके साथ तलावत करूं, तो वहां लिखा है, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक हाजत रफा करे। और इंग्लिश में क्या लिखा है, एंड माई गॉड विल सप्लाई एवरी नीड ऑफ योर्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी इन क्राइस्ट जीसस। खुदावन यीशु मसीह में तुम्हारी हर एक हाजत को पूरा करे, तुम्हारी सारी कमियों को पूरा कर दे, तुम्हारी सारी मुश्किलों का हल जो है तुझे दे दे, तुम्हारे लिए आसमान को खोल दे ताकि तुम्हें शफा भी मिल जाए। दुनिया की चीजें जिनके लिए हम तरसते फिरते हैं ना, जब हम उसकी बादशाही को तलाश करते हैं तो वो हमारा मुकद्दर यानी वो हमारा अनाम जो है वो बन जाती हैं। और इसी से हम खुदा के कलाम की रोशनी में सीखते हैं, हम बीमारियों से शिफा पाते हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, इब्लीस की ताकतों पर गालिब आते हैं, रूहानी तौर पर हम जो है वो एम्पावर हो जाते हैं। दाइन इज द पावर, कुदरत जो है वो तेरी है, क्योंकि हम यहाँ खुदावन के कलाम मुकद्दस में से ये बात सीख रहे हैं, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। द पावर इज बिलोंग टू आवर किंग, ताकत और कुव्वत जो है वो हमारे बादशाह की है और उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह की है, खुदा के बर्रे की है। और अजीजों, हम यहां पर सीखते हैं, हिज पावर इज अवेलेबल टू यू एज यू सीक हिज किंगडम। अगर आप उसकी बादशाही को तलाश कर रहे हैं तो आपको वो बादशाही मिलेगी। मैंने कहा सारी ताकत खुदा की है और उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह की। हर वो जिंदगी जिसने अपने आप को मसीह को दे दिया है वो मसीह की मेरास को शेयर करता है, और आप फिर उस पावर और कुदरत को शेयर करेंगे जब आप अपनी जिंदगी मसीह को देकर खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। हम सीखते हैं कि द पावर इज बिलोंग टू आवर किंग, हमारे बादशाह की है, एंड हिज पावर इज अवेलेबल टू यू एज यू सीक हिज किंगडम। अगर आप उसकी बादशाही की तलाश कर रहे हैं, इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि आसमान की बादशाही की तलाश करो तो दुनिया की चीजें भी तुम्हें जो है वो मिल जाएंगी। आज अजीजों, हम खुदा का शुक्र करते हैं कि कुदरत का, ताकत का मंबा जो है वो हमारा बाप है, जो आसमानी बाप है, और हम जो है खुदा के पाक रूह के वसीले से एम्पावर होते हैं, और मसीह के वसीले से जब हम खुदा के पास आते हैं तो खुदा की सलामती आपके साथ हो, खुदा का फजल आपके साथ रहे।